If you can dream it, you can do it. Walt Disney said that. But in the story of Abbas Ali Mughal, the dream did not begin with him. It began with Habib, a young boy in Iran who left home at a tender age and arrived in India looking for a place in cinema. He didn't come as an action man. He became a character actor, finding roles in many of the mythic Arabian Nights-style films made by my grandfather, Nanabhai Bhatt. A time when stories were legend, budgets were small, and courage stood in for the craft. Years later, in 1982, during the filming of Gandhi in India, Abbas, then barely 20, appeared for a fleeting moment on screen. Not a major role, but to him, it was symbolic proof that even a moment can hold the weight of a lifetime's aspiration. He still carries that memory with pride. But the real turning point in his journey came off screen. After more than 4 decades of separation, Habib returned to Iran to meet his family. He passed away there unexpectedly. And in the wake of that loss, Abbas, young, slender, not physically built for stunts, stepped into the world of action. Not out of ambition, but out of continuity, out of love. He entered the stunt fraternity in what we now call the dark days, long before safety gear, before rehearsals, before Sholay changed the landscape and foreign stunt coordinators redefined the science of impact. Back then, action meant risk. Every jump was a gamble. Every fall a negotiation with fate. From that era of pure courage, Abbas Ali Mughal emerged. Today we stand in a different world. CGI, motion capture, digital mapping. The camera no longer risks lives to create awe. Action can be simulated. Precision has replaced instinct. Technology now absorbs the blow that bodies once did. But the heart behind the frame remains unchanged. The dream that began with Habib traveled through Abbas and now moves forward through Arbaz. Because sometimes legacy is not passed on, it is walked alongside. This is not just a journey of an action director. It is a story of time itself. Of cinema rising from sand and sweat to wire rigging and pixels. Of a dream that crossed borders, survived bruises, touched history, and still moves forward. Let's meet him now. The man who still works as if every frame, every blow, every life matters. आदाब अब्बास भाई। आदाब मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब्बास भाई, मुझे आपको ये पूछना है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू हैव ऑफ हबीब साहब? मैं उनके साथ जाता था छोटा, मतलब 4th स्टैंडर्ड में था शायद, जब कुछ यादें हैं तो वो रोज सुबह लेके जाते थे। वहाँ ज्योति स्टूडियो के आगे एक होटल होती थी, न्यू हीरोज़ बोल के। हम लोग वहाँ खीमा पाव खाते थे, वहाँ उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह मिलते थे, फिर हम ज्योति स्टूडियो जाते थे। तो ज्योति स्टूडियो में मैं सब एक्टरों को देखता था, वहाँ शूटिंगें चल रही है। नाना भाई भट्ट जी की भी बहुत तेज शूटिंगें वहाँ चलती थी ज्योति में। तो मैं वो माइथोलॉजिकल पिक्चर की भी शूटिंगें देखता था कि एक छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ के वो बच्चे को उठा रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं। और जब मैं स्क्रीन पे देखता था तो इतना बड़ा पहाड़, तो मैं डैडी को पूछता था ये कैसे होता है? बोले वो सब करते हैं वो लोग, ऐसा ये वो। तो मैं आईने में उनकी एक्टिंग करता था कि ये कैसा लहजे में बात करते हैं, लहजा उनका जो ईरानी टोन था, तो मैं वो कॉपी करता था। तो ऐसे ऐसे जैसा मैं मतलब बड़ा हुआ, तो मैं हमारे गली में कभी गणपति का प्रोग्राम होता था तो मैं उनकी वॉइस निकालता था, और अमजद भाई की वॉइस बहुत अच्छी निकालता था। तो मैंने अमजद भाई का एक एड भी किया हुआ है। यस यस यस, वो पूरा शोले वाला। जी 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 जी। तो वो देख देख के उनको ऐसा लगा, तो बोले तो अपने स्कूल में ध्यान रख। तो मैं बोला नहीं डैडी, मेरे को इसमें डालो ना पिक्चर में। क्या करेगा तो ये उम्र में? मैं बोला कुछ तो शुरुआत तो कीजिए।
तो फिर उन्होंने किसी से बात की, फिर वो ज्योति स्टूडियो में मैं सीखता था। वो फाइटर अकबर शरीफ हमारे गुरु है मेरे, उनके साथ सीखता था। रॉबर्ट मास्टर एक पुराने थे, उनके साथ सीखता था। तो आहिस्ते आहिस्ते करके फिर वो ऐसी उम्र थी कि वो ना मैं कुछ हीरो के मतलब ऐसा कुछ मेन लीड में आता था या बचपना, तो ऐसे उम्र थी कि वो फिर स्टंटमैन ही बनना पड़ा मुझे। और उनका ये था कि यार ये लाइन में किसी का कुछ हुआ नहीं है। देख मैं आ गया ईरान से, मैं 17 बरस की उम्र में आया बसंत स्टूडियो में, वहाँ जॉन काउस, होमी वाडिया, इनके साथ रह रहे के उनको टार्जन, जॉन विस मुलर की आवाज़, टार्जन की पिक्चर वो बहुत देखते थे, तो वो आवाज़ निकालते थे वैसा। तो उनको बहुत शौक था वो बॉडी बनाना, ये बनाना। तो बसंत पिक्चरों में उनका सफ़र शुरू हुआ। तो वो हमेशा बोला करते थे कि यार प्रोड्यूसरों से पैसा निकालना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ऑफिस में तो लोग मिलते नहीं थे, तो कैसा करें? तो बोले सुबह सुबह जाके नॉक करो घर पे 4-5 बजे। तो अंदर से आवाज आती थी प्रोड्यूसर की, कौन है? तो बोले दूध वाला। तो वो दरवाजा खोलते थे तो पकड़ लेते थे कि लाइए भाई पैसा दीजिए। तो उस टाइम पे उनके पैसे ज्यादा थे, फैमिली का बर्डन मतलब आहिस्ते आहिस्ते ज्यादा होते गए। 2 बेटियां, 5 भाई, उसमें से दोनों के रिश्ते भी सही नहीं हुए, मतलब दामाद सही नहीं मिले, तो उनको वो ज्यादा फिक्र थी। तो उनके हालात एकदम ड्रॉप होने लगे। और इतने साल में कोई रिश्तेदार उनको आया नहीं था मिलने के लिए। तो और वो चाहते थे कि अब्बास मतलब जल्दी जल्दी तू कुछ कर ताकि मैं तेरी तरक्की देखूं। तो ऊपर वाले से यही एक वो रह गया, अरमान रही कि मेरे डैड मेरी तरक्की नहीं देख पाए। और उनकी फैमिली मतलब वो रिश्तेदार आए, उनकी तबीयत ख़राब थी 84-85 में। तो उन्होंने बोला कि चलो हबीब भाई को हम घुमाने लेके जाएंगे ईरान। तो हमने कहा देख लीजिए डॉक्टर से बात करके। तो डॉक्टर से हमने बात की तो डॉक्टर बोला हाँ भेज दो, अच्छी बात है, ईरान जाएंगे और तबीयत अच्छी होगी। और उसी दिन याद है कि मेरे डैडी को मैं एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था और फिर सडनली कुछ मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ काम निकला। तो मैं डैड को वहीं मैंने हक किया, मेरा डैडी आप जाके आराम से आइए। मैं एयरपोर्ट नहीं जा सका और वो गए और वहाँ से मतलब खबर आई कि 1 महीने में ऐसा हो गया। और इंडस्ट्री का खाली एक बंदे ने फ़ोन किया था जिनका नाम है प्राण साहब। हमारे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, टीवी भी नहीं था, तो हमारे गली के सामने एक फ़ोन होता था जहाँ हमारा मैसेजेस आते थे। तो मैं वहाँ गया तो बोले आप हबीब के बेटे बोल रहे हैं? मैं बोला जी सर। तो बोले मैं प्राण बोल रहा हूँ एक्टर। और मतलब प्राण साहब कैसे हैं सर? सॉरी, थैंक यू जो आपने फ़ोन किए। बोले अपना ख्याल रखिए, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। मैं बोला नहीं सर, थैंक यू सो मच। फिर मैं फेडरेशन में गया कि उनके इतने साल का जो आप लोग का जो चंदा कटता था कि क्या है। तो वहाँ पर चेयरमैन शायद केन सिंह साहब थे या प्रेसिडेंट थे, पता नहीं, एक्टर केन सिंह साहब। तो उन्होंने बोला कि आपको मंथली 50 रुपया मिलेगा। मैं बोला नहीं सर थैंक यू, ये आप रख लीजिए, 50 रुपया क्या होता है मंथली। तो ये सब चीज़ों के साथ में फिर आहिस्ते आहिस्ते करके मैंने भी सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा ध्यान कैमरे की तरफ भी रखता था, फाइटर में काम करता था, लोगों को पूछता था कि ये कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है। फिर अपना दिमाग चलाने लगा। फिर वो 92 में फिर आई थॉट कि आई शुड बिकम फाइट डायरेक्टर। So you're self-taught, huh? You taught yourself on the field. But आप कभी ईरान गए नहीं? नहीं मैम, अभी इंशाल्लाह जाने का प्रोग्राम है जी। वाइफ के साथ जाऊंगा, उनकी कब्र पे जाके फातिया पढ़ना। हालांकि फातिया तो यहाँ भी पढ़ता हूँ ये रोज, लेकिन वहाँ एक बार जाना बहुत जरूरी है। बट आई एम जस्ट स्ट्रक बाय द फैक्ट कि आपने गांधी में काम किया, वो हुआ कैसे? मैम जैसे स्कूल छोड़ने के बाद मैं गैराज में काम करता था क्योंकि कॉलेज के पैसे भर चुका था, कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैकेनिक का काम ज्वाइन करता। तो दिन के 2 रुपये मिलते थे। और उसके बाद जब मैं काम करके लंच टाइम पे बाहर आता था, नाके के ऊपर खड़ा रहता था लंच टाइम थोड़ा पास करने के लिए, तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जाते थे, तो मैं उनको देख के मुंह छुपा लेता था कि मुंह पे काला लगा है और हबीब का बेटा, एक्टर का बेटा गैराज में काम कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में था कि ना मैं चाइल्ड आर्टिस्ट में काम कर सकता था, ना बड़े जवान कुछ ऐसा था। 17 बरस की उम्र थी जी, वो ऑकवर्ड एज था। तो उसमें मैंने सोचा कि यार क्या करें। तो फिर हमारे एक फाइट डायरेक्टर है अकबर शरीफ, एक ज्योति स्टूडियो हुआ करता था अभी ओपेरा हाउस पे, तो उनके वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। फिर मैं स्टंटमैन बन गया। तो पहली पिक्चर मेरी थी एज एन गनी साहब के साथ, मैंने राज तिलक में काम किया था।
फिर जब हमको गांधी के लिए मोहम्मद अली भाई फाइट डायरेक्टर थे बॉम्बे से, तो उनके यहाँ से चांस मिला काम करने का। तो उस टाइम पे हमारा पर डे हुआ करता था 120 रुपीज समवेयर एंड 20 रुपीज कन्वेंस। तो ये इंग्लिश पिक्चर का एक ये था कि मतलब इंग्लिश पर डे भी मिल रहा था हमको। लेकिन उसमें क्या था कि अगर आपके बाल अगर बड़े हैं तो सुबह सेट पे आपके बाल काटेंगे, तो बहुत से स्टंटमैन आना नहीं चाहते थे, तो उसके लिए हमको 250 रुपया पर डे था। ओके। तो हमने 2 दिन वहां शूट किया था, वो नमक आंदोलन सत्याग्रह जो होता है। तो वहां पर मैं अंग्रेज सोल्जर बना हुआ था, इंडियन सोल्जर हूँ लेकिन अंग्रेज के साथ काम कर रहा हूँ, और वहां अपने इंडियन लोग आते हैं और उसको मैं कैसे वैक करता हूँ डंडे से। तो एक लकीली एक क्लोजअप आ गया है उसमें, और जो मैंने वो संभाल के रखा है अभी तक। तो मैं इतना खुश नसीब था कि मैं इतनी बड़ी पिक्चर में मेरा एक क्लोजअप आया है, तो सबको मैं बताता था कि ये देखो यार मेरा क्लोजअप। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब जब आप फाइटर्स देखते थे, जब आप मूवी स्टंट, जब हमारे महालक्ष्मी में रेसकोर्स के पास वो ऑफिस हुआ करती थी, तो मैं वहां जाता था तो मुझे शर्म आती थी कि यार कैसे मैं इन लोगों में मिक्स होऊंगा, क्योंकि ये शोले के जो फाइटर्स थे सब 6-6 फीट 6.5 फीट, सब बॉडी बिल्डर, सब खतरनाक लुकिंग, और एक 17 बरस का बच्चा आया है, कैसे होगा। तो एक दिन राजपूत की शूटिंग चल रही थी, तो मरूम अजीम भाई जो हमारे फाइट डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला यार हबीब के बेटे को भी ले लेना, चांस दे देना। तो उसमें 150 लोग महाबलेश्वर जा रहे थे। तो मैं वो असिस्टेंट के पीछे पड़ा हूँ कि प्लीज मेरा नाम भी डाल दीजिए। अजीम भाई ने मेरा बोला हुआ है कि नाम, वो बोले नहीं है, और उसमें क्या है ना अब्बास, वहाँ राइडिंग है, वो आप कर नहीं पाओगे, कैसे होगा, ये होगा। तो मैं 6:30, ऑफिस 6 बजे बंद हो जाती है, तो मैं 6:30 बजे तक उस आदमी के पीछे लगा था कि प्लीज यार अजीम भाई ने जब बोल चुके हैं तो आप क्यों नहीं डाल रहे मेरा नाम। तो ही सेड नहीं होगा, एंड फाइनली ही वेंट अवे। और मैं ब्रिज पे खड़ा था मैम, और मैंने ऊपर देखा आसमान पे, और मेरे आंखों में से आंसू आ गए कि मैंने बोला अल्लाह ये क्या है, जब इतना डिफिकल्ट है ये जर्नी, तो मैं कैसे इसको फेस करूंगा। तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को, तो मैंने जिम ज्वाइन की। मैंने थोड़ा अपना गेटअप चेंज किया, दाढ़ी वाड़ी रखे, बाल बड़े रखे। फिर उसके बाद मैं जिम जाना शुरू किया, मैंने बॉडी बनाना शुरू किया। मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि यार मैं काम कर सकता हूँ, मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। फिर अल्लाह ने मुझे ऐसा एक मौका दिया कि जो आदमी मेरा नाम नहीं लिखना चाह रहा था, वो एक दिन फाइट डायरेक्टर बन गए। और उन्होंने मुझे एज एन असिस्टेंट अपने पास बुलाया, और हम लोग एक सीक्वेंस कर रहे थे। एक हॉस्पिटल है बैंड्रा में, आई थिंक बाबा हॉस्पिटल, तो उसमें हम लोग एक सीक्वेंस कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि मास्टर जी आप सीक्वेंस बताइए क्या होगा। तो उन्होंने बोला हाँ वही ना सर, वो ऑपरेशन होके वो पेशेंट आया है, वो एक पागल से टकरा था, बोले वो तो मैंने बताया आपको। करेक्ट। अब इसको कैसे डिवीजन होगा, कैसे आप इसको सीक्वेंस को आप एनहांस करेंगे, ये आप बताइए। अब वो कंफ्यूज हो गए मास्टर, जो मेरा नाम नहीं लिख रहे थे उस टाइम पे। तो मैं अकेले में उनसे जाके बोला कि मैं मास्टर जी, मैं अगर आप चाहे तो मैं सीक्वेंस नरेट कर दूं क्या। तो उन्होंने बोला हाँ बता दो। तो मैंने डायरेक्टर को सीक्वेंस नरेट किया कि ये सीक्वेंस ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, पूरा शॉर्ट ब्रेकडाउन के साथ, पूरा शॉर्ट ब्रेकडाउन करके मैंने बता दिया। और वो डायरेक्टर इतना इम्प्रेस हो गया कि मुझे यही सीक्वेंस करके दीजिए। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक वक्त में मैं वहां रो रहा था, फिर अल्लाह ने मुझे वैसे मौका दिया कि मैं उसी आदमी के लिए मैंने उनका सीक्वेंस संभाला। योर सेंस ऑफ कैमरा, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा, परफॉर्मेंसेस, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर। यू नो मोर देन मोस्ट डायरेक्टर्स। आपके अंदर कभी ये बात नहीं आई कि खुद की फिल्म आप डायरेक्ट कर ले? मैम इंशाल्लाह आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग बोलते हैं कि बस भाई आप डायरेक्ट करिए, लेकिन पहले हीरो की डिमांड रखते हैं। हाँ। कि यार आप अक्षय को ला सकते हैं क्या। मैं बोला अक्षय को लाना है तो आप मुझे ले रहे हैं या अक्षय को ले रहे हैं? कहाँ से मैं कहाँ से अक्षय को लाऊं? एक तो 5 साल लग जाएंगे अक्षय के पीछे जाने में। हालांकि मैंने 32 पिक्चरें अक्षय भाई के साथ की है, अक्की भाई के साथ, लेकिन फिर भी वो मैं अपना रेपो नहीं बना पाया। मेरा 9 से लेके 6 बजे तक मैं डायरेक्टर के साथ रेपो रख सकता हूँ, लेकिन आर्टिस्टों के साथ मैंने अपना नहीं बनाया। मैं एक पिक्चर कर रहा था वतन, तो उसके मैं रील्स लेके घूम रहा था। हालांकि फैजल को मैं सिखा रहा था 2 साल से, बोरीवली से अप डाउन करना, फैजल को ट्रेन करना विदाउट एनी कन्वेंस, विदाउट एनी मनी। दिस वाज फॉर मधोश। फॉर मधोश, राइट। अब उनके डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट जी।
तो विक्रम भट्ट ने उस टाइम पे कहा था कि भाई मुझे वीरू देगवन चाहिए, क्योंकि एक पिक्चर बन रही थी जानम, विशेष फिल्म की, तो जिसमें ऐसा मैं थी, जी जो फ्लॉप भी हो गई। तो ऐसे था कि भट्ट साहब के यहाँ से, मुकेश जी के यहाँ से एक डायरेक्टर आया है विक्रम, तो विक्रम भट्ट चाह रहे थे कि वीरू देगवन चाहिए। अब ताहिर हुसैन साहब बोलने लगे कि नहीं, वीरू देगवन तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप शमीम अजीम को ले लीजिए, अजीम भाई के बेटे को। तो विक्रम भट्ट ने उनको ले लिए। तो एक सीक्वेंस शायद विक्रम भट्ट को पसंद नहीं आया, और मैं उस टाइम पे रील लेके फैजल को बोल रहा हूँ कि प्लीज यार एनएच में एक बार विकी साहब को दिखा दो यार, मेरा वो काम मैं कैसे करता हूँ। तो उन्होंने बोला यार ठीक है, वो काम उनका पसंद नहीं आया, लेकिन मैं हनीफ अब्बास तुम लोग का बोलता हूँ। तो विक्रम भट्ट को उन्होंने बोला कि अब्बास हनीफ को एक बार देख लो यार। तो उन्होंने बोला ठीक है, कल बल्ला हाउस में वहाँ शूटिंग चल रही है जानम की, आप आ जाओ। तो फैजल हम दोनों को लेके वहाँ चला गया। तो वहाँ उसी दिन राहुल रॉय का बर्थडे था। अब विक्रम भट्ट अंदर से बाहर आने तैयार नहीं है। फैजल को बोला यार उनको बोलो कल आ जाओ कमालिस्तान में, कल बात करते हैं। अब मैं फिर वही मेरा तरीका ऊपर देखने लगा। मैं बोला अल्लाह ये क्या हो रहा है, हाथ में रील भी है मेरे कि देख लें। तो फैजल आए, बोले कि अब्बास भाई वो आज भी टाइम नहीं है विक्रम के पास, वो कल परसों वहाँ कमालिस्तान बुला रहा है। तो मेरा एक असिस्टेंट था नूरा, तो उसकी जबान पता नहीं आमीन हो गई। उसने बोला अब्बास साहब आज चलिए, जिस दिन विक्रम आपका काम देख लेगा ये जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगा। तो पता नहीं उस दिन क्या अल्लाह को मंजूर था, वही हुआ। आई जस्ट वांट टू आस्क यू अब्बास भाई, कितने साल हो गए आपके? मैम मैं 92 में बन चुका था, तो 92 से 18 और 25 43 समवेयर। तो उस जमाने में सेफ्टी गियर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बॉक्सेस भी नहीं थे। बॉक्सेस थे, क्योंकि शोले आ चुकी थी जी। तो उन्होंने बताया था कि बॉक्सेस को कैसे यूज करते हैं। तो उसमें कैसा था कि नीचे एक 7 लेयर का बॉक्स होता था, फिर 5 लेयर का, फिर 3 लेयर का, फिर 2 लेयर का। उसके नीचे पैकिंग डालते थे, फिर उसके बाद गधे ले तो, और ऊपर से जंप करते थे। मैंने एक मेरी पिक्चर थी एक और 11, उसमें मैंने 11th फ्लोर से जंप लिया था, दोनों डुप्लीकेट का। तो 11th फ्लोर से दे हैड जंप्ड विदाउट सेफ्टी, मतलब ऑन द बॉक्सेस। ओह माय गॉड। फिर उसमें एक डुप्लीकेट ने पैर उठा लिया था, मेरा जो असिस्टेंट है एजाज, जो अभी फाइट डायरेक्टर है। जी जी जी। तो फिर मैंने डेविड साहब को कहा कि डेविड साहब एक 1 मोर करते हैं। डेविड साहब बोले तू पागल हो गया है क्या, 11 माले से जंप एक 1 मोर कैसे हो सकता है। तो विक्रम ने कहा कि मुझे आप जाके भट्ट साहब से मिल लीजिए। तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने भट्ट साहब के साथ कभी असिस्टेंट में भी ना कोई फाइट मास्टर के साथ काम किया था। तो मैं भट्ट साहब के साथ पहली बार मिलने गया। तो हमारी पिक्चर एक बन रही थी विशेष फिल्म की, ये है मुंबई मेरी जान, जिसका नाम बाद में आशिक हुआ था जी, सैफ के साथ। तो एक कमाल का इंसिडेंट है, मैं भट्ट साहब को मिलने गया, मैंने आदाब किया भट्ट साहब को। तो भट्ट साहब ने कहा अरे आप अब्बास हैं, विक्रम आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, भैया ये कैसेट लीजिए और वो सीक्वेंस आप देख लीजिए इसमें और शूट करके दे दीजिए। भट्ट साहब को उस टाइम पे ही मैंने बोला था प्यार से कि भट्ट साहब मैं रेफरेंसेस नहीं देखता हूँ जी। तो भट्ट साहब समझ गए कि ये रेफरेंस वाला बंदा नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक मुहावरा दिया था जो आज तक मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, मुझे अगर कोई दावत में बुलाता है तो मुझे चिकन मटन खाने का शौक नहीं है, भैया एक अच्छी सी दाल खिला दीजिएगा आप। तो मैंने भट्ट साहब को प्यार से कहा था कि भट्ट साहब मैं आपको एक तड़के वाली दाल खिलाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो सीक्वेंस मैंने शूट किया था और भट्ट साहब ने इतने अप्रिशिएट किए थे उस सीक्वेंस को। तो उसके बाद मेरा घर बन गया भट्ट साहब का, मुकेश जी का और आपका मैम। तो मैंने विशेष फिल्म की इतनी पिक्चरें की हैं जी। और मैं भट्ट साहब का जो नरेशन होता है उसको हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि फॉलो करो। भट्ट साहब की एक अच्छी बात मुझे लगती है कि वो हमेशा बोलते हैं कि जो भी काम करो तो दिल से करो। बिल्कुल। जो मैंने आज तक वो चीज को याद रखा है और हमेशा मैं दिल से ही करता हूँ काम। वो तो है जी। आपने कभी जिंदगी में कोई शॉट को ना नहीं कहा है? जी। मैं इसलिए पूछ रही थी आपको सेफ्टी गियर के बारे में, बिकॉज बजट बड़े हो गए हैं, बट फाइटर्स एंड द एक्शन डिपार्टमेंट का जो रियलिटी है, हैव थिंग्स इम्प्रूव्ड फॉर योर बॉयज, फॉर यू? कि वो जो पहला एक फिलॉसफी था कि हीरो को एक भी खरोच नहीं आना चाहिए, फाइटर चाहे मर जाए, बट नथिंग शुड हैपन टू द लीड एक्टर्स। अब भी माहौल ऐसा ही है कि हैज देयर बीन एनी एडवांसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट? नहीं मैम, ऐसा ही है, खाली टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जी। अभी क्या हो गया, पहले जो हम बोलते थे स्टंटमैन को कि भाई आप लोग कितनी ताकत है उतना ही गिरिए, क्योंकि सेफ्टी हर आदमी की इंपॉर्टेंस है। आपको एक फाइटर की भी उतनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी जितने आप एक एक्टर के लिए देखते हो। बिल्कुल। नहीं तो अगर वो आदमी को अगर मार लगते रहेगा तो एक तो आपका नाम खराब होगा कि भाई फाइट मास्टर कौन है, जो कि बहुत से ऐसे फाइट डायरेक्टर हैं जिनके सेट पे हो चुका है जी। अल्लाह ना करे कभी किसी का ऐसा हो
तो मेरा काम है कि मैं पहले जो भी आदमी स्टंट करता है तो मैं उसकी सेफ्टी पहले देखता हूँ। हीरो की भी देखना हमारा काम है, लेकिन हर आदमी अपने अपने हिसाब से बेचारा कैपेबल है काम करने के लिए। अभी किसी का होता है कि यार मास्टर जी मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो प्लीज आप हट जाओ। अच्छा वो आपने पहले बताया, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग जब फाइटर थे तो अरे यार तेरे को किसने फाइटर बनाया, ये उतार उसको यार। करेक्ट, ह्यूमिलिएट करते थे। हाँ जी। तो अभी ऐसा नहीं है, और अभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि अभी टेक्नोलॉजी आ गई तो केबल से खींच देते हैं जी। फाइटर की कोई अहमियत नहीं है कि भाई उड़ा के फेंक दो यार, खींच लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी आता है बेचारा, एक जो बजट है, एक तो क्या होता है हमारी यूनियन में 3 साल के बाद एक कुछ 10% या 15% बढ़ता है, उससे कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। पहले तो ऐसा था कि इंश्योरेंस भी नहीं हो रहा था, थैंक्स टू अक्षय भाई, अक्षय कुमार, जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया है। ओके। तो सबकी सेफ्टी हो गई। मतलब सेफ्टी होने के बावजूद भी ये नहीं है कि आप किसी की सेफ्टी ना देखें। करेक्ट। सेफ्टी करना हमारा काम है। अब वो लग गया, अनफॉर्चुनेट कभी होता है भाई, आप ग्लास ब्रेक करते हो तो ग्लास ऑलवेज टेक्स लिटिल ब्लड। करेक्ट। तो वो तो हमको भी लगे हैं, उनको भी लगेंगे ग्लास में, क्योंकि एक फाइट मास्टर वहां तक कर सकता है कि भाई हमने क्रैश मैट डाला है, हमने बॉक्सेस डाले हैं। अब ग्लास में अगर ग्लास, वो हमारे पास एक वो मोम का जो ग्लास आता है शुगर, हाँ। वो यहाँ इंडिया में नहीं बनता है, तो वी यूज टफन ग्लास ओनली, वेदर रियल ग्लास ओनली। करेक्ट। तो वो शुगर ग्लास अब भी नहीं मिलता है? नहीं बनता है वो स्मॉल एक इसमें बनता है 2-4 में, वो भी टाइम पे आकर अगर आप ऑर्डर करो तो वो बनता है, नहीं तो वो पूरा बड़ा ग्लास नहीं बन पाता है, क्योंकि वो ठंडी में ज्यादा उसको रखना पड़ता है, जैसे आइस फैक्ट्री में जैसा होता है, तो उसको ठंडा रखना पड़ेगा तब जाके वो स्टे करता है, नहीं तो वो नहीं रह सकता है वो ग्लास। मैं देखिए लाइटिंग डिपार्टमेंट एंड द एक्शन डिपार्टमेंट, दे डू नॉट गेट देयर ड्यू। कोई उनको पूछता नहीं है कि वो कंफर्टेबल है, चाहे वो खाना हो, रहने का जो इंतजाम करते हैं, ट्रैवल एंड द सर्कमस्टांसेस ऑन द सेट, मगर फिर भी आपको डिलीवर करना ही पड़ता है और आप करते हैं जी। तो अगर आप इस स्टेज पे कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड चेंज? पहले तो एक रिस्पेक्ट, जैसे कि फॉरेन टेक्नीशियंस आना शुरू हो गए जी। तो उनके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है कंपेयर टू अस। जी। अभी एक पिक्चर आ रही है जिसमें उन्होंने 11 दिन रिहर्सल किया है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि यार मुझे 2 दिन रिहर्सल, अब्बास भाई आपको रिहर्सल की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ही नहीं उठता यार, आपने तो इतने साल में कभी रिहर्सल किया नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब एक तो क्या है कि स्टंटमैन का पर डे बढ़ा दो, बढ़ा दो, आप बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हॉलीवुड में ये होता है मैडम कि हर एक मतलब स्टंट करने वाला अलग अलग बंदा होता है। हॉर्स फॉल करने वाला वो अलग होता है जी। जो स्पेशलाइज्ड ग्लास ब्रेक करने के लिए वो बंदा अलग होता है। बिल्कुल। कार चेजर वो अलग होता है, हाई फॉल करने वाला वो अलग होता है। हमारे यहाँ हर एक फाइटर सब कुछ करने तैयार है। उतना उसका यही नहीं मिलता है कि अगर स्पेशल रेट, अगर हम सोच रहे हैं कि अगर ऊपर से अगर 5 माले से जंप कर रहा है तो हम उसको 2 लाख रुपया दिलाएं, तो फिर प्रोड्यूसर बोलेगा यार 2 लाख रुपया करेक्ट स्पेशल रेट, बोले नहीं हो सकता यार। तो हमको बजट के हिसाब से मतलब प्रोड्यूसर को देखना पड़ता है कि भाई क्या होगा, कैसा प्रोड्यूसर है, बड़ा प्रोड्यूसर है, छोटा है, तो उनके साथ फिर हमको डील करना पड़ता है कि स्टंटमैन देख भाई तेरे को ये तू बॉडी पे फायर लगा रहा है तो तेरे को इतना ही मिल रहा है, अगर तू कंफर्टेबल है तो तू लगा, नहीं तो फिर हम वीएफएक्स में बोलेंगे कर ले यार। बिल्कुल। और मेकअप आर्टिस्ट जो है इन कंपैरिजन उनके रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं, वो तो आर्टिस्ट से ज्यादा पैसे कमाते हैं अभी फिल्मों में या शोज में, बट योर रेट्स हैव स्टेड मोर और लेस द सेम इज व्हाट यू आर सेइंग। और वेब सीरीज और ओटीटी के आने से कुछ बदलाव आया है, और हैव द बजट्स बिकम इवन टाइटर कि आपको कम बजट्स में कम दिनों में ज्यादा डिलीवर करना पड़ता है? बजट आप सही बोल रहे हैं मैम, एकदम ही टाइट हो गया है कि ये वेब सीरीज है। अरे यार लेकिन आप शूट तो पिक्चर कैसा कर रहे हो? करेक्ट। आप स्केल तो हमको अभी आपने मुझे लिया है तो मैं मेरा काम सीरियल के हिसाब से तो नहीं करूंगा, मुझे पिक्चर के हिसाब से ही आदत है काम करने की। तो आप बोलोगे मेरा बजट नहीं है, आप 1 दिन में कर दो, 2 दिन में कर दो, तो हमको कैसा ना कैसा खत्म करके देना ही पड़ता है कि भाई यार ये बजट ही नहीं है तो क्या करेंगे। सो नो वैल्यू ऑफ द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द स्टंट, नॉट इनफ टाइम फॉर रिहर्सल, जी, नॉट इनफ टाइम टू शूट। जैसे वो सीक्वेंस आपने किया था फॉर आवारा पागल दीवाना, जो फिरोज भाई ने आपको एक रेफरेंस दिया था, जो उन्होंने ओरिजिनली 40 डेज में शूट की थी जी, और आपको कहा गया कि कितने दिनों में करो? 6 दिन थे हमारे पास, और आपने कर भी लिया? और मैंने कर दिया उसको। और फिर जो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये तो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट में देखो थोड़ा कम कर दो, ये कर दो, उसके अलावा भी वो रिजल्ट
मतलब मुझे लगता है कि मैंने शायद दिया है, और परफेक्ट लोग आज भी तारीफ करते हैं वो सीक्वेंस की। तो मतलब था कि रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, लेकिन आपको करके देना है। वो एक सीक्वेंस आपने हॉट एयर बलून पे किया था, मुझे जी। याद है, व्हिच वेंट वायरल। या खिलाड़ी 420। वो कैसे किया था आपने? मैम वो कनाडा में शूट हो रहा था, और अक्षय ने मुझे बोला कि मास्टर जी आप सिर्फ कैमरा चालू रखना। मैं बोला आप क्या करने वाले? बोले कुछ नहीं, खाली भाग रहा हूँ। मैं बोला उतना ही शॉट है कि आप भाग रहे हैं रनवे पे, और उन्होंने कैमरामैन को कुछ अलग बोला, तो कैमरा चालू ही रखना। तो ही रैन, ही सेड टॉम डोंट स्टॉप, भागे भागे, और वो विंग्स पे उन्होंने जंप मारा और वो पायलट ने टेक ऑफ कर लिया। तो कैमरामैन ने पैन कर लिया। बोला अक्की भाई ये तो आपने मुझे बोला नहीं। आपको पता ही नहीं था? हाँ, बोले अगर मैं बोलता मास्टर जी तो आप मेरे को करने नहीं देते। सही बात है। लेकिन कमाल वो बनता है मैम, ऐसा हीरो इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नो, एंड ही इज वेरी स्ट्रांग ना। इज वेरी स्ट्रांग। तो आज के जो हैं, डू दे हैव दैट सेम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेल्थ, और ये काम आप लोग कर लेते हैं और उनको बहुत बड़ा दिखाते हैं? मुझे नहीं लगता मैडम कि जो इनकी जो ताकत है, अक्षय कुमार की जो हाथ में जो ये है, अगर ये किसी को बोल दें कि मैं विदाउट सेफ्टी अगर मैं पकड़ूं एक आदमी अगर चॉपर पे लटक रहा है, और अक्षय कुमार ने बोल दिया कि मैं इसको एक हाथ से कैरी कर लूंगा, तो वो कर लेंगे इसको। बाकी कोई हीरो में मुझे लगता नहीं कि इतनी ताकत होगी। और हर आदमी स्टंट्स करता है जो नए आए हैं वो, लेकिन जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है जी। जैसे अपनी पिक्चर थी संघर्ष, तो मैं अक्षय भाई के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा था। तो अक्षय भाई आए और उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया कि बोले मास्टर जी देखो हम पहली बार हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा ये ऐसा एक्रोबैट करूंगा, ऐसा ये करूंगा, वैसा करूंगा। सॉरी मैं बोला कि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर तरह के स्टंट्स आपको मैंने करते हुए देख लिया है, लेकिन आपने मेरी गुलाम जैसी इमोशनल फाइट नहीं करी है आज तक किधर। और आपका कैरेक्टर भी प्रोफेसर का है इसमें। तो अक्की भाई हम थोड़ा सा उस जोन में जाएं तो बेटर है। तो लकीली उस सेट पे भट्ट साहब के कहने पे शायद विक्रम भट्ट आते थे वहां पर, क्योंकि तनुजा डायरेक्टर थे जी। तो विकी साहब ने बोला अक्की अब्बास करेक्ट बोल रहा है, तो अब्बास का वो फॉलो करा। और आज भी अक्षय का इंटरव्यू है कि मेरी बेस्ट फिल्म में वो संघर्ष का नाम लेते हैं एक्शन का। करेक्ट। गुलाम ऑल्सो यू शॉट एन अमेजिंग जी मैम, थैंक्स। यू आइडिएटेड द एंटायर थिंग। जी, आमिर ने मुझे खाली एक ही सजेस्ट किया था कि अब्बास तुम सोच लेना कि तुम देवानंद की फाइट जैसे होती थी वैसे शूट करना उसको। तो मैंने पूरा वो कोरियोग्राफी वैसे ही किया था, और उसकी एडिट में भी जब मैं वामन जी के पास जाता था, विशेष वो जो एडिट था वहां पर, तो इमीडिएट काट रहे थे। तो मतलब वामन जी इसको ऐसा नहीं काटना है, इसको इतना ठहराव रखना है। तो बोले बेटा तेरे दिमाग में है तो तू मेरे असिस्टेंट के साथ बैठ के काट ले। तो मैंने 20 जंबो रोल 2000 के जो आते थे अपने डेवलप होने के बाद, उसको मैंने काट काट के वो फाइट को मैंने ये किया कि अभी वामन जी ये शॉट लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए। 2 बजे जाता था, रात में 10-10 बजे बाहर आता था। फिर उसमें एक किस्सा हुआ था कि आमिर भाई ने बोला कि मैंने शरद सक्सेना को मारा, धाड़, शरद सक्सेना गिरा, और मैं जाता हूँ शटर खोलता हूँ, पब्लिक हे करके चिल्लाती है। तो मुझे वो सुनने में अच्छा नहीं लगा। तो मैंने आमिर भाई को बोला आमिर भाई ये कैसे लग रहा है मालूम है, मेरा बेटा होली फैमिली में पढ़ता है, तो मैं अरबाज के स्पोर्ट्स में गया हूँ। तो अरबाज भागा, अरबाज जीता, मैं अरबाज का हाथ पकड़ा, रिक्शा पकड़ा, घर पे आया, वाइफ को बोला हे अपना बेटा जीत गया, इतना डिले हो रहा है रिएक्शन। हमें से तू बोलना क्या चाहता है? तो मैंने बोला आमिर भाई पूरी फाइट में वो लोग काउंटिंग दे रहे हैं, ये चैंपियन उठना, ये चैंपियन उठना। बोला जैसे आपने शरद सक्सेना को मारा था, मैं बोला जो लंगड़ा है वो बोलना चाहिए 1 धड़म धड़म, 2 मलबारी, 3 शरद पे ट्रॉली नहीं उठ रहा है, आप चल रहे, 4 पूरा क्राउड चिल्ला रहा है, 5 6 7 8 9 10 है। अच्छा आमिर भाई का फिर वो चालू हो गया, नहीं अब्बास विक्रम डिड यू लाइक इट? तो विक्रम बोला नो नो नो। तो बोला ठीक है सर। तो 2 दिन के बाद मैम अब उनको मिल नहीं रहा है वो फिल्म द ब्लैंक्स, वो गैप भरने के लिए नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला अब्बास तू क्या करके बता रहा था, जरा वापस बता। आमिर सेट 2 दिन के बाद, तो मैंने वो फिर परफॉर्म करके बताया कि ऐसे ऐसे शॉट्स होंगे। विकी यार ही इज राइट यार, वो गैप्स भी भर जाएगा। और ये मैं बोला आमिर भाई ऐसा प्लीज देख लीजिए। तो उन्होंने वो किया है। और विक्रम जी का याद है मुझे एक ट्रेड गाइड में उन्होंने दिया था कि मेरे फाइट मास्टर को
वो क्लाइमेक्स खत्म हो गया था, फिर सीन में उन्होंने एक सजेस्ट किया था, तो अब्बास भाई का सजेशन इतना अच्छा था कि मतलब हमने उसको लिया। नहीं, तो मगर जैसे आपने कहा कि मैंने परफॉर्म करके दिखाया, जो आप परफॉर्म करते हैं ना अब्बास भाई, आपके मतलब एक तो आवाज में वजन है, जी। आपके अंदर कन्विक्शन है, और इवेंचुअली एनर्जी बिजनेस है। जी तो जब भी आप सेट पे आते ही हैं, यू कम विद दैट एनर्जी, एंड मतलब जैसे अगर आप क्यू देंगे, जैसे वो थाड़ आपने बोला, जी। तो रिएक्शन तो निकलता ही है, डफरों से निकलता है। और द फेमस ट्रेन सीक्वेंस, ट्रेन सीक्वेंस। सानपाड़ा में शूटिंग कर रहे थे, जी। मुझे याद है। एंड दैट टाइम सीजी वीजी स्पेशल इफेक्ट्स भी, इट वाज अ न्यू थिंग। हाँ, वो शुरुआत हो रही थी मतलब वीएफएक्स की, लेकिन हमने वैसा किया नहीं था। खाली एक शॉट को हमने, वो जो साइड वाला शॉट है उसको हमने सोचा था कि वो क्योंकि एकदम कट टू कट निकलना है, तो जी। उसको हमने 2 लेयर में लिया था। और एक मैंने लाइव लिया था आमिर भाई के साथ, वो ट्रेन आ रही है और आमिर भाई से निकलते, मैंने बोला विकी साहब एक सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा, अगर ये वीएफएक्स अच्छा नहीं हुआ वो साइड वाला, तो हमारे पास एटलीस्ट एक शॉट तो है। बिल्कुल। और मुझे याद है सक्सेस पार्टी थी गुलाम की, वर्सोवा में थी, तो वहां मुझे अंजुम रजब अली मिल गए। उन्होंने बोला अब्बास भाई कहीं आपने बोला है कि ये सीक्वेंस मुकेश जी का है, मुकेश जी ने कंसीव किया है? मैं बोला हाँ शायद, क्योंकि मुकेश जी ने मुझे बोला था कि अब्बास भाई कैसा लगा सीक्वेंस, क्योंकि मैंने कंसीव किया है ये। तो मैंने बोला अंजुम भाई, मैंने इंटरव्यू में वही बोला कि मुकेश जी का कंसीव किया हुआ है, अगर मुझे क्रेडिट चाहिए होता तो मैं बोलता था कि अब्बास अली मुगल ने कंसीव किया है। नहीं नहीं आप गलत है, आपको पहले पूछ लेना चाहिए। मतलब किससे पूछो? बोले वो मेरा कंसीव किया हुआ सीक्वेंस है। तो बोला अंजुम जी नेक्स्ट इंटरव्यू में कभी ऐसा होगा तो मैं आपका नाम ले लूंगा। तो वो क्रेडिट के लिए लड़ते जाएंगे, जिन्होंने काम किया है वो तो क्रेडिट तो मांगता ही नहीं है। तो दिस इज द अमेजिंग थिंग अबाउट यू कि आओ, आपका यही इंटरेस्ट है कि बेसिक काम होना चाहिए जी। और काम अच्छा होना काम चाहिए, अच्छा क्रेडिट होना वेडिट आप लोग ले लो। बट आपको याद है हम शूट कर रहे थे इन स्पीति फॉर पॉप, 17,500 18,500 फीट पे शूट कर रहे थे। किसी ने कभी वहां पे उस लोकेशन में शूटिंग की नहीं थी। मुझे याद है जब मैं पहुंचा उस दिन शायद भट्ट साहब निकल रहे थे और हम लोग पहुंच रहे थे एक्शन डिपार्टमेंट, तो जॉन ने मुझे पकड़ा साइड में, यार अब्बास भाई इधर बहुत मतलब सांस नहीं ले पा रहे यार, तो एक्शन कैसे होगा? तो जॉन डोंट वरी यार, मैं एकदम कट करके शॉट ले लूंगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं, तू बिंदास रहे। और मुझे याद है मैं भूल गया मैंने जॉन को क्या बोला था, तो मैंने 3 घंटे में वो फाइट खत्म कर दिया। और जॉन मुझे ढूंढ रहा है कि ये आदमी कहाँ गया जो बोला था कट करके लेगा, और मैंने वो पूरी फाइट वो 3 घंटे में हमने खत्म कर दी। महबूब साहब जो थे वो एक सिनेमैटिक जीनियस थे। पढ़ाई तो नहीं की थी उन्होंने। लोगों को लगता है कि हम जाके फिर कोर्स कर लेंगे या पढ़ाई कर लेंगे, और आपने देखा है कि कितने सारे लोग हमारे सेट पे आते हैं, चाहे वो असिस्टेंट्स हो या कुछ भी, फिर उनको अनलर्न करवाना पड़ता है। यू डू नॉट हैव टू बी एजुकेटेड। एजुकेशन का कुछ लेना देना नहीं है सिनेमैटिक समझ के साथ में, राइट? एग्जैक्टली मैम। कितने ऐसे फाइट मास्टर हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिल्मों की पढ़ाई उन्होंने दिल से जो भी सीक्वेंसेस को मतलब बयां करना था स्क्रीन पे उन्होंने किया है। मरूम अजीम भाई ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं दे सकते हैं। हम कहीं और चले जा रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज को में ज्यादा ध्यान रख रहे हैं जो इंडियनाइज नहीं कर सकते। फॉरेनर्स आते हैं, टेक्नीशियंस, हमारी गुलामी मैम अभी तक खत्म नहीं हुई। अभी तक हम लोग गुलामी है लोगों के। अरे भाई हमारे पास इतना खजाना है कि आप ढूंढिए उसको और आप उसको लाइए ना पर्दे पे। बिल्कुल। वो आप जैसे अरबाज, एक बार मैं अग्निपथ कर रहा था तो मेरे सेट पे आया वो, तो उसने ऋतिक से बात की कि ऋतिक सर मैं सोच रहा हूँ कि कैसे होगा, क्या आपने क्या किया था, मैं जाके कुछ कोर्स करूं क्या? तो ही सेड नहीं, शूटिंग पे आइए, उसकी धूप और भूख, इसको आप अगर आपने जज्ब कर लिया तो आप कहीं फेल नहीं होंगे। तो बहुत अच्छी बात ऋतिक ने बताई थी अरबाज को। तो ही सेड डैड देखो ऋतिक जैसा बंदा ये कर रहा है, मतलब सही बताया उसने। टेक्नोलॉजी के बदलने से ग्रीन स्क्रीन, वीएफएक्स, सीजीआई, आपके हिसाब से हैज द स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन इम्प्रूव्ड और हैज इट डिटीरियोरेटेड? कुछ हद तक बेहतर हुआ है, कुछ ज्यादा हद तक बुरा भी हुआ है। क्योंकि लेजी हो गए। पहले होता था कि यार एक सॉकेट पड़ा हुआ है, अरे वो हटाना यार, हाँ सब जाके हटा देते थे। अभी वो सॉकेट अरे क्यों हटाएंगे, वो वीएफएक्स में हो जाएगा। अरे यार
पहले हटाना यार जाके उसको, कितना टाइम लगता है। और इतने नए आ गए हैं कि उनको अगर आप कुछ सजेस्ट करो, अरे यार इसको मत लो यार, ये अब्बास भाई बहुत सीनियर है, ये अगर कुछ बोल देंगे तो वो सुनेंगे नहीं। अरे भाई क्यों नहीं सुनेंगे? अगर आप सही है तो सर आंखों पे, Correct. नहीं है तो हम अपना सजेशन देंगे आपको। अगर आपको लगता है कि ये सजेशन सही है तो आप लीजिए, नहीं तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, मतलब बोल दीजिए कि नहीं मास्टर जी हम लोग हमारे तरीके से जाते हैं। जैसे मेरी पिक्चर थी अग्निपथ, उसमें क्लाइमैक्स उन्होंने लिखा था कि ऋतिक जो है वो संजय दत्त को मारेगा चाकू से, संजय दत्त गिर जाएगा हवेली पे और ऋतिक उसको ड्रैग करेगा, ऋतिक संजय दत्त को ड्रैग करेगा झाड़ तक। तो मैं जब सुन रहा था तो मुझे लगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। पहली बात तो संजू के फैंस हजम नहीं करेंगे इसको कि ऋतिक संजू को ड्रैग करेगा। दूसरी आपकी कहानी खत्म हो जाती है कि अभी पब्लिक उठना शुरू हो जाएगी कि इसके बाप को उसने झाड़ पे लटकाया था, अब ये संजू को लेके आके लटका देगा। ऋतिक को मैंने बोला, डुगू इसको और करण को बोला कि इसको उल्टा करो, लेट संजू ड्रैग ऋतिक। तो आपकी 10 मिनट पब्लिक और एज ऑफ द सीट बैठेगी। बिल्कुल। क्या अब क्या होगा यार, अब क्या होगा? नो मास्टर जी वो ऐसा नहीं होता, हम लोग तो 6-6 महीना स्क्रिप्ट पे बैठते हैं। मतलब उस टाइम पे आपने मुझे थोड़ी बुलाया था। मुझे सुनने में ऐसा लगा तो मैंने आपको मैंने सजेस्ट कर रहा हूं। तो 2 दिन लगे उनको, देन दे फाइनली केम कि मास्टर जी विल गो योर वे। आपका इंस्टिंक्ट करेक्ट जी, कि ऋतिक को ड्रैग कराइए जी। और वो पब्लिक जो थी वो क्लैप ट्रैप था जब ऋतिक रिटाइलेट किया था संजू को। मगर संजू के बारे में वन थिंग आई नोटिस्ड, एक तो है मारना, दूसरा है मार खाना। His reactions to a blow were brilliant. And otherwise मैंने दूसरे हीरोज में बहुत बार एक रेजिस्टेंस देखा है, so he had that quality ना। या मैम, मतलब पावरफुल है, मतलब ऑडियंस उसके दीवाने हैं, मतलब और इतने फैंस है उसके कि जरा भी अगर हमने संजू को, जैसे एक पिक्चर थी मिशन कश्मीर, उसमें ऋतिक ने कुछ लात मारा, संजू वेंट विद द केबल, तो लोगों ने पसंद नहीं किया था उसको। और मैं हर जगह मेरी एक पिक्चर का एग्जांपल देता हूँ, भट्ट साहब की पिक्चर का नाम का जी। वो जो इंटेंस वाला एक सीन है कि जहाँ भट्ट साहब के पास टाइम नहीं था, हमने सुना था कि पता नहीं कोई बीमार था या पता नहीं, एंड संजू सेड कि अगर किसी माँ के दूध में इतनी ताकत है वो बंदा आ गया है जिसको मौत से ये नहीं जी है। जी जी। वो अगर उधर एक्शन भी होता तो इतना वो सीक्वेंस हाईलाइट नहीं होता जो भट्ट साहब का जो वो सीक्वेंस हाईलाइट लगता है उस। मगर आपने तो बहुत काम किया संजू के साथ में। या मैम, तो व्हाट आर सम ऑफ द क्रेजीएस्ट मैडेस्ट मोमेंट्स विद हिम, क्योंकि वो है ही कमाल का बंदा। बच्चा है, बच्चा मतलब एकदम। हम लोग एक पिक्चर कर रहे थे, नो प्रॉब्लम, मैं चिल्ला रहा हूँ सेट पे, इतने आर्टिस्ट हैं, मैं गले में मेरे पट्टा है, तो मेरे को आराम से पूछा उसने, अब्बास क्या हो गया? तो मैं बोला बाबा थोड़ा पेन ज्यादा हो रहा है मेरे को। अच्छा, तो जैसे मैं गया तो फाइटर बोल, इसको बोलना पैकअप कर यार, काहे को टाइम पास कर रहा है। मतलब वो अपने पैकअप में लगा हुआ है, पैकअप में लगा हुआ है। That's true. मेरा मेन काम था सड़क टू के सेट पे कि उसको कैसे वैनिटी वैन से सेट पे लाना। That was my job. तो ऐसे से आई एम द लायन टेमर कि गैरी बेचारा खड़ा है बाहर, सब लोग वेट कर रहे हैं, और फिर ब्लड का ऑब्सेशन, वो जो खून का बोतल लेके अपने आप पे ऐसे डालता था वो, एंड माय फादर वुड बी के व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाई दिस सो मच ऑफ ब्लड, ये रहने नहीं वाला है। बट व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस स्टंट जो आपने खुद परफॉर्म किया है? मैम मैंने तो इतने कर दिए कि एक तो मैंने कम से कम 10-15 बार फायर लगाए पूरी बॉडी पे। मैंने एक हॉर्स बॉल किया था, मैंने हालांकि 3-4 हॉर्स बॉल किए थे। पहले वो घोड़ों के पैर में केबल बांधते थे और उसको लॉक कर देते थे और घोड़ों को एक मार्क पे लाते थे, पहले वहां तक का केबल टाइट रखते थे। अब घोड़ों को पीछे लेके जाके और फुल स्पीड में वो घोड़ों को लाना पड़ता था और वो केबल उनको गिरा देता था, और जो राइडर है वो उड़ के गया आगे। तो हम लोग एक शूट कर रहे थे आई मिलन की रात, उसका वीडियो भी मेरे पास है कि मैंने आया और अविनाश वाधवन ने ऐसा सैडल मारा और मैं गिरा, तो मैं चेस्ट और सर पे लैंड हुआ जमीन पे। तो फाइट मास्टर ने सिर्फ रेत मंगाई थी चांदीवली में, इतनी हार्ड थी कि मैं आधा घंटा बेहोश हो गया था। ओह माय गॉड। और मैं मेकअप रूम में उठा, सब जा चुके थे यूनिट वाले, फाइट मास्टर भी जा चुका है, एक बंदा मेरे साथ बैठा है कि कब उठे उसको मैं घर पे लेके जाऊं। तो मैं होश में आया और मुझे बोरीवली में रहता था तो वो लेके गए थे। आपको ऐसे छोड़ के चले गए? छोड़ के चले गए सब लोग। मगर ओह माय गॉड। उसके बाद मेनका जी ने वो बंद करवा दिया, एनिमल्स के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो वो सब लकीली अच्छा हुआ, वो जो
के बंद करवा दिए, नहीं तो घोड़ों के कभी पैर टूट जा रहे हैं उसमें तो फिर उसको गोली मार देते थे घोड़ों को, वो काम के लायक नहीं रहता था। फिर हॉर्स फॉल, मैंने ऊंट कैमल फॉल किया है बंटवारा पिक्चर में। उफ, फिर एक ग्लास ब्रेक किया था मैंने बेटा में, जिसमें मेरे टॉयलेट के जो अपने होल के सेकंड होल हो गया था, इसमें 11 टाके लग गए थे मेरे को। माय गॉड। मैंने वो फाइट मास्टर को बोला था, ये आप अगर बोल रहे हो ये टेबल को गिराने का, तो मैंने आपको बोला था ये टेबल मैं गिराऊंगा तो मुझे मार लगेगी। तो ही सेड आई डोंट केयर, मेरे को डायरेक्टर को खुश करना है। तो मैं बोला यार आपने तो बोला था, इसको मैंने टेबल को लॉक कर दिया, इधर बड़ा मिरर है, वो क्लाइमेक्स में शॉट है, अनिल कपूर उठा के फेंकता है। तो बोला अगर ये टेबल गिराऊंगा तो मैं कांच पे गिरूंगा और मेरे को कांच लगेगी। बोला मुझे शॉट से मतलब है। तो मैंने इधर एक बड़ा रैंप लगाया और मुझे या अली मदद बोलने की आदत है। मैं वहां से एक फाइटर को मैंने बोला देख अभी मेरे को मार लगेगी, ये मैंने बोला और मैं या अली मदद बोल के घुसा कांच में। वो टेबल मैंने गिराया और मेरी बॉडी आई और एक कांच जो है वो सेकेंड होल बना दिया उसने। और उस टाइम पे ये भी नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर को कुछ बोलूं, तो मेरा कुछ 2,500 का कुछ खर्चा था। तो मैं वो मेडिकल के लिए मैंने फाइट मास्टर को बताया कि मेरा ये 2,500 का बिल है, क्या करूं 11 दिन में, जो मैंने स्टिचेस वगैरह जो पट्टी वट्टी जो ये किया है। अरे यार अभी तुम 2,500 भी प्रोड्यूसर से मांगोगे? अरे बोला मास्टर जी ये तो 2,500 रुपया है। तो इतने में प्रोड्यूसर ने सुन लिया, अरे अब्बास वो क्या है तेरा बिल है कुछ है? मैं मार लगा था। मैं बोला हाँ सर 2,500। प्रोड्यूसर देने तैयार है बट मेरा फाइट मास्टर मुझे दिलाने को तैयार नहीं था। माय गॉड। तो ये सब चीजें। और फैमिली पे क्या बीतती है आई मीन फैमिली हैज कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि एवरी टाइम यू लीव टू वर्क कि पता नहीं कि किस हाल में वापस आने वाले हैं। मैम सबकी दुआएं रहती है, बस सब दुआ कर सकते हैं कि भाई जा रहा है सेट पे अच्छे से वापस आए, शाम में आए तो भाई खुश, अगर मार लगी तो वही है कि भाई आपको। और ये है कि थोड़ा प्रोड्यूसर्स भी आजकल मतलब पहले भी करते थे कि भाई मार लगा तो एक 15 शिफ्ट का हमारा एसोसिएशन का लॉ है कि अगर वो आदमी 3 महीने काम नहीं कर सकता है तो प्रोड्यूसर हैज टू पे देम 15 शिफ्ट, जो पर डे उनका होता है वो 15 शिफ्ट के हिसाब से जितने महीने वो घर पे बैठा है वो घर पे फिर उनको मिलता है। और खुदा ना करे अगर किसी की डेथ हुई तो वो प्रोड्यूसर कुछ एक अमाउंट है 5 लाख रुपया। बट इज इट इनफ? कुछ नहीं होता, एक जिंदगी चली जाती है आपकी। और जब आपका एक्सीडेंट हो गया था सेट पे, जब भी आप आए थे जिस्म 2 की शूटिंग के लिए और क्रचेस, यू वर डूइंग 6-7 फिल्म्स एट दैट टाइम। वो चक्रव्यूह का मैं रेकी करने गया था, तो वहाँ एक मजार थी, 70 फीट स्लोप था। तो मैंने वो प्रोडक्शन को बोला था कि भाई आप एक रस्सी रख लेना ताकि अपन लोग को पकड़ पकड़ के उतरेंगे। तो मैंने मजार पे दुआ पड़ी और मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बोल रहा था मैडम कि मत उतर अब्बास, मत उतर मत उतर। तो मैंने बोला वो रस्सी कहाँ है यार? तो गांव में चली गई गाड़ी और वो गांव आधा घंटा दूर था। इतने में वो लोकेशन वाला एक लड़का आ गया, तो प्रकाश झा ने बोले कि अब्बास भाई क्या करें? बोला सर वो रस्सी तो नहीं है, अभी उतर जाते हैं। और जैसे ही 2 स्टेप उतरा मैं तो मेरा पैर स्लिप हो गया एंड आई वेंट 25 फीट डाउन, दादा 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 करके गया, पैर मेरा खड़क। और जो हम जो शॉट लेते हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू, आई कुड सी दैट पूरा झाड़ जी, और ये चोक हो गया ये। अब मेरा वेट उस टाइम पे आई थिंक 110-115 था। तो सब सेटिंग वाले मेरे को उठाने की कोशिश कर रहे, तो आई सेड यार प्लीज मुझे मत उठाओ। प्रकाश जी सेड मास्टर जी कुछ नहीं हुआ है कि। मैं बोला नहीं प्रकाश जी हड्डी टूट गई है। एंड आई ड्रैग्ड माई सेल्फ, घसड़ के मैं ऊपर आया तो प्रकाश जी नीचे लेके गए, तो उधर लाइट भी नहीं थी। तो उन्होंने एक देखा एक्सरे में, लाइट आई आधे घंटे के बाद, पैर ऐसा एंकल टूट गया है नीचे। तो मैंने प्लास्टर किया, उन्होंने प्लास्टर करवाया। जैसे मैं सीढ़ी से उतरा, नाउ आई वॉज विद द क्रचिस आ गई मेरे लिए। तो प्रकाश जी ने कहा कि अब्बास भाई 2 लोकेशन और है, क्या करना है? तो मतलब सर वो भी देख लेते। तो आई वेंट विद दिस थिंग क्रचिस, गया, मैंने देखा। अब 2 लोकेशन हो गए फाइनल। तो शाम में मुझे कैमरामैन है जो बॉम्बे लेके आया, और नानावटी में प्रकाश जी ने मेरा बुक कर लिया था ऑपरेशन का ये वो। तो मैंने केम टू नानावटी, मैंने घर पे भी फोन नहीं किया कि वाइफ को कि मेरे को मार लगी है, खाली बड़े भाई को, महमूद भाई को मैंने बुलाया था। तो नानावटी में आया, मैंने नानावटी का मंजर देखा तो मैं डर गया। मैं बोला यार यहाँ नहीं करा सकता मैं। अब मेरी एक स्पेशल 26 की शूटिंग थी 8 तारीख को दिल्ली में, और वो परमिशन ऐसा था कि पूरा कन्नौड प्लेस हमको मिल गया था। अब वो बैलेंस शूटिंग हमको करना ही है 8 तारीख को। अब ये बात हो रही है 4 तारीख की। तो मैं नेक्स्ट डे मेरे डॉक्टर को मैंने दिखाया, वाइफ आ गई और लेके गई मेरे को। 5 तारीख को
उसने बोला कि 6 को ऑपरेशन करेंगे और आपको 1 महीना रेस्ट करना है। मैं बोला 1 महीना नहीं, 1 दिन रेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी 7 पिक्चरें फ्लोर पे है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल। पिक्चरें छोड़ना। तो बोला ऐसा कैसा होगा यार। मैं बोला सर आप ऑपरेशन कर लीजिए, बाकी काम मैं कर लूंगा। तो 7 रात को मैं फ्लाई किया, मैं दिल्ली गया और 8 तारीख को व्हील चेयर पे मुर्तुजा मेरे को लेके भगा रहा है और मैं शॉट लगा रहा हूँ और पूरा सीक्वेंस मैंने शाम को 6 बजे तक मैंने कंप्लीट कर ली व्हीलचेयर पे बैठ के। व्हील चेयर पे बैठ के। और वो आज का बेस्ट सीक्वेंस है मनोज बाजपेयी का, जो वो भागता है। और 7 पिक्चरें सेट पे थी और थैंक्स टू नीरज पांडे, थैंक्स टू यू मैम, और इतने लोगों ने मुझे सोचा कि नहीं यार अब्बास भाई को कंटिन्यू रखने। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार ये तो लंगड़ा हो गया यार, अभी तो इसको घर पे बिठा दो। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था। फिर मैं श्रीलंका आपके लिए आया और मैंने वहां भी शूट किया। प्रकाश जी के लिए लोग मुझे खाट पे लेके जाते थे, तो बोले फाइट मास्टर का है? बोले वो खाट पे जो सोया है वो फाइट मास्टर है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आप फाइट मास्टर नहीं बनते तो क्या बनते हैं? कुछ नहीं होता। एक एक्टर मेरे में है, जो मैं एक्टिंग, लोग बोलते हैं यार अब्बास भाई एक्टिंग भी अच्छा कर लेते हैं, एक्शन तो करते ही हैं, एक्टिंग भी अच्छा। तो एक वो अंदर से एक ये था कि मैं एक्टर तो बन ही जाऊं। फिर नहीं तो मैंने इसमें ज्वाइन किया, तो इसके साथ साथ भी मैंने काफी मतलब एक्टिंग भी की है। हाँ, कितने फिल्मों में किया जी। आपने यार? तो एक शौक, एक अंदर से एक जज्बा कि नहीं यार यही करना है, फादर की लेगेसी को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। जी। फिर अरबाज से मैंने कहा अरबाज यहाँ तू एक्शन पे अभी ध्यान मत रख, तू डायरेक्शन में ध्यान रख। हमेशा वो तारीफ करता है कि जब मैं भट्ट साहब को मिलने गया तो भट्ट साहब ने मुझे कहा कि अगर आपको अच्छा डायरेक्टर बनना है तो खुद ही स्टोरी लिखना मतलब सीखो। बिल्कुल। लिखना उसने शुरू कर दिया है अपना वो सब। आई मीन नाउ इज पिचिंग कि अगर, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है नावडेज। विक्रम के पास फर्स्ट टाइम वो असिस्ट करने गया तो मैंने उसको बोला बेटा सब चीज करना, बैठना नहीं कभी। नहीं तो लोग बोलेंगे देख यार ये फाइट मास्टर का बेटा है, ये बैठता बहुत है। जी जी जी। अब वो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तो आके मम्मी को बोलता था मेरे पैर बहुत दुखते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती क्यों ऐसा दुख रहे हैं तेरे को? बोले डैडी ने मना किया है बैठने से। सेट पे बैठने से। हाँ। तो मेरी वाइफ मेरे को चिल्लाने लगी कि आपने इसको बैठने से मना किया। बोला चेयर पे बैठने से मना किया है, साइड में तो किधर भी जाके बैठ सकता, सारा दिन खड़ा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोला तो साइड में, उसको लगा कि मैंने मना ही कर दिया, किधर भी नहीं बैठ रहा था वो। था। जी। फिर विक्रम मुझे बोलते थे कि अब्बास तो अपनी गाड़ी में लेके जाना अरबाज को, तेरा बेटा है यार। मैं बोला नहीं विकी साहब, वो असिस्टेंट है, उसको वो रूट से आने दो जो असिस्टेंट रूट से आते हैं। तकलीफें मालूम पड़नी चाहिए। मेरी गाड़ी में तो मैं बिठा लूंगा, लेकिन नहीं बिठाना है मुझे, क्यों मैंने वो रूट फॉलो नहीं किया था जी। आसान रूट नहीं। तो वो बस में बैठता था, लाइटमैन लोग आते थे, लोड करते थे, नाइट चलती थी, फिर सुबह जाते थे, फिर जल्दी उठ के आते थे। सारे आपके जो असिस्टेंट रहे हैं जी, वो आज इंडिविजुअल फाइट मास्टर्स हैं। सो यू हैव क्रिएटेड हाफ दिस इंडस्ट्री। जी, जी, आपके जी। साथ ही चाहे एजाज हो या जावेद हो या जो भी, मैं देखती थी उनको, दे वर फाइटर्स एंड यू टॉट देम एवरीथिंग। So it's a sense of pride also. मगर how difficult is it, Abbas bhai, to constantly find new people and groom them? And I've noticed कि यहाँ पे इंसान क्लैप सीख लेता है, उनको लगता है कि अभी मैं तैयार हूँ, तो वो इंटर्नशिप और वो जो आवर्स और इयर्स जो इन्वेस्ट करना है कि पहले मैं इस चीज को परफेक्ट करूँ फिर मैं एक कदम ऊपर जाऊं, वो आज के दौर में है कि उनको सिर्फ फास्ट टिकट चाहिए। फास्ट टिकट चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड वाले लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सब चीज सीख के आए। बिल्कुल मैम इतने साल हो गए मुझे, अभी भी मुझे रात में नींद नहीं आती है। कभी मैं सोचता हूँ कि यार कल सुबह मैं सीक्वेंस करने जा रहा हूँ तो उसको मैं कैसे करूँ, कितना अच्छा कर सकता हूँ। अगर कोई डायरेक्टर बोलेगा कि ये नहीं ये, तो उसका ऑप्शन लेके चलूँ। बिल्कुल। तो अभी भी मैं रात में उठ के मैं अपने डिवीजन अपने दिमाग में कर लेता हूँ कि ये सीक्वेंस को मैं ऐसा करूंगा यार, ये सीक्वेंस को मैं ऐसा करूंगा। मतलब वो जो शौक है, जो जज्बा है, वो अब पैशन है। हाँ। मैंने बोला अगर ये पैशन मेरे में नहीं है तो मुझे इंडस्ट्री में रहने का हक नहीं है। मैं खुद ही रिटायरमेंट ले लूंगा कि नहीं यार अभी मेरा पैशन खत्म हो गया, क्यों मैं वेस्ट करूं दूसरों का टाइम। लेकिन वो जाता ही नहीं है वो पैशन। इतना एक्साइटेड होता हूं मैं कि रोज सुबह सेट पे मैं हमेशा की तरह अगर 9 बजे है तो 8:15 बजे पहुंच जाता हूँ। लोग बोले आ गया यार ये अभी ये चालू कर देगा। तो वो आदत नहीं जाती है वो। That's the same thing that frustrates me कि पैशनलेस लोग हैं और रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड है, बट वो प्रोसेस जो है वो एंजॉय नहीं करते। और किसी को मेहनत नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी। एक रेफरेंस उठाते हैं, बोले ये शूट करना है। अरे वो रेफरेंस हमारी स्टोरी के साथ नहीं जाता है।
हम कैसे करें उसको, वो नहीं जाता है ना हमारे रेफरेंस हमारी स्टोरी के साथ में, हम अलग लेके जा रहे हैं आप मुझे। मैं बोला या तो आप मुझे प्रूफ कर दो कि भाई आप सही हो, या मैं आपको प्रूफ करता मैं सही हूँ। बिल्कुल। तो हम एक टीम वर्क बन के काम करें तो बेटर है। हाँ, तो बिसाइड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस, स्टोरी, एंगल्स, लेंसेज, बीइंग अ प्रोड्यूसर्स मैन, आपको एक साइकियाट्रिस्ट भी बनना है, बिकॉज ईगोज कैसे हैंडल करना है लोगों के, खास तौर के जो भी आपके मल्टी स्टारकास्ट वाली फिल्में बनती है विद मल्टीपल हीरोज, बहुत कुछ होता होगा ना। बहुत होता है। मैं आजकल एक नया आया है कि मेरा आईलाइन क्लियर करो। अब कैमरामैन सामने कैमरा लगाया हुआ है, उसके बाजू में एक रिफ्लेक्टर होता है, आई लाइन क्लियर करो तो लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। अरे भाई आई लाइन क्यों क्लियर करो, पहले तो नहीं होता था ना, सब लोग खड़े भी होते तो आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे। आजकल एक नया आई लाइन क्लियर करो, एक आर्टिस्ट है वो बोले कि यार आई लाइन क्लियर करो, तो मैं वहां बैठा था ऐसा वो साइड में, तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर भाग के आया मेरे पास कि मास्टर जी आई लाइन क्लियर करने बोल रहे हैं। तो बोला मैं किधर आई लाइन में हूँ, आई लाइन तो ये है ना यार, शॉट ऐसा है, मैं तो इधर हूं, वो आपको पॉइंट करके बोल रहे हैं कि थोड़ा ये। मैं बोला उसको बोल तू 4 आदमी थिएटर में ला सकता है क्या। सही बात है। इतना कौन सा आई लाइन है यार, 180 ऐसा देख रहा है तू यार। मैं बोला मैं नहीं हटता हूँ। अरे प्लीज मास्टर जी शूटिंग रुक जाएगी, आप प्लीज हट जाइए। तो बोला ठीक है यार, मेरी नौकरी का सवाल है। उसने जब ऐसा बोला तो मैं हट गया। अब आपको शॉट यहाँ देना है, आप इधर देख रहे हैं। आपने अजीम भाई के बारे में बात की, गंगा जमुना का जो ट्रेन सीक्वेंस था वो उन्होंने शूट किया था। ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइट मास्टर्स वी एवर हैड। बड़े बड़े एक्टर्स उनको बहुत इज्जत से देखते थे। तो आपको लगता है कि वक्त के साथ फाइट मास्टर्स का जो किरदार होता था, आज की तारीख में वो किरदार वाले कम हो गए हैं? पीपल हु कमांडेड रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर डिमीनर, देयर डिपेंडेबिलिटी, जबान, वो लोग कहाँ गए अब्बास भाई? उस जैसे लोग आ ही नहीं सकते। जो रिस्पेक्ट उनकी थी, जो हम लोग भी जब शुरू किए थे, जो हम लोग की भी रिस्पेक्ट एक होती थी, आजकल लोगों ने अपनी रिस्पेक्ट को गिरा दिया है। जाके चमचेगिरी करना, मैं बोलता हूँ चमचेगिरी एक हद तक चलेगी। आपका काम ही आपको काम दिलाएगा, काम पे बुलाएगा, नहीं तो आप नहीं तो चमचेगिरी से कुछ नहीं होगा यार। जिसकी आप चमचेगिरी कर रहे हैं वही आपको भगा देगा। तो हर आदमी सोचता है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं क्यों किसी की इज्जत करूं। वो रिस्पेक्ट खत्म ही हो गई है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज वाले माँ बाप हैं, या माँ बाप हैं आपके जवान हैं, जो भी है, अगर वो को सजेस्ट करते हैं तो हम लोग को वो समझ के आप लोग एडवाइस लीजिए ना जी। आप लोग को क्यों बुरा लगता है यार? और पहले तो सब प्रिपेयर्ड आता है कि हम डायरेक्टर हैं। हाँ करेक्ट, जो कि है ही नहीं। आपको टाइम लगेगा, आप डायरेक्टर का डी भी नहीं है, फिर भी आप लोग को प्रूफ करना है कि हम डायरेक्टर हैं, हम ये हैं, हम वो है। नहीं होता। और बहुत से फाइट मास्टर ऐसे हो गए हैं कि डायरेक्टर अगर नया है वो बोलता है ये दिन नहीं रात है यार। हाँ ये रात है भाई। तो हाँ में हाँ मिला होगा तो आपकी क्या इज्जत होगी भाई। हम जब आपको बोलते हैं कि भाई आप मास्टर जी ये बस भाई ये दिन ये रात है, मतलब नहीं भाई ये दिन ही है, बिल्कुल ये इतना बज रहा है, बिल्कुल। आप डिस्कस करिए क्या सीक्वेंस आपको चाहिए, क्या चाहिए, कैसे सेफ्टी के साथ हम आपको करके देंगे। रिस्पेक्ट एकदम ही खत्म, मतलब नहीं के बराबर है अभी। जो आपने कहा कि ऐसे टेक्नीशियन अजीम भाई ने, जो मैंने सुना था कि दिलीप साहब एक भी शॉट में वो घोड़े पे नहीं बैठे हैं, लेकिन वो सीक्वेंस आप गंगा जमुना का कोई नहीं शूट कर सकता है। वैसे कमाल शूट किया उन्होंने। बजट वाइज भी इतना खराब हो गया है कि आपको इतने सस्ते वाले ढूंढते हैं कि भाई आप आ जाओ सेट पे, आपको आप भले आपने कुछ नहीं किया है कंटिन्यूटी। पहले तो एक ही बंदा होता था जो कंटिन्यूटी लिखता था कि भाई ये कहाँ पर शॉट खत्म हुआ है, वहां से शॉट रिज्यूम करो, डायरेक्टर को जाके बता देता था। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि सेट पे डायरेक्टर हैं या एसोसिएट वाला कुछ बोल रहा है या 4-5 लोग हैं वो बताएंगे कि ओके हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, there's no सेंटर नहीं है। तो आप कहाँ डायरेक्शन करने निकले यार, जब आपको 5 लोग बता रहे हैं। सही बात है। आई जस्ट वांट टू टेक यू बैक टू जोश। शाहरुख नेवर हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्शन स्टार,
You were largely responsible for giving him that reputation. मैम उनकी तो तारीफ करनी पड़ेगी शाहरुख भाई की कि मतलब वो एक इतना एनर्जेटिक बंदा था। एनर्जेटिक तो है डेफिनेटली। उस टाइम पे हम सुनते थे कि भाई ये वो 100 सिगरेट भी मैं देखता था कि वो, लेकिन मैंने पूरा वो कोरियोग्राफ किया था। मंसूर भाई ने मुझे कहा था कि आप जाके पूरा क्लाइमेक्स डिजाइन करो, ये हमने लिखा हुआ है। तो मैंने एक दिन पहले एक वीडियो कैमरा लेके जाके मैंने वो पूरा शूट करके उनको एडिट करके दिखाया था। खाली एक सीक्वेंस में शाहरुख भाई चाह रहे थे कि मैं चंद्रचूड़ सिंह को ऐसा चेन डालूं। मैंने ऐसा डिजाइन किया था कि चेन डालेंगे और कैमरा विल मतलब गो राउंड एंड राउंड, एंड शाहरुख दबा रहा है, ऐश्वर्या आ रही है, वो छुड़ा रही है उसको। शाहरुख सेड मास्टर जी नहीं, मैं वो चंद्रचूड़ के गले में डालता हूँ, ऐसा गोल गोल घुमाता हूँ। तो शाहरुख भाई वो एनर्जी नहीं आएगी, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि यार चंद्रचूड़ बंदर की तरह आप उसको मदारी का वो खेल कर रहे हो, वो अच्छा नहीं लगेगा। मंसूर भाई ने देखा कि कुछ ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बोले अब्बास भाई क्या है? तो बोला मंसूर भाई मैं ऐसा सोच रहा था। शाहरुख, अच्छा शाहरुख व्हाट इज योर दिस थिंग सजेशन? तो इस साइड के मैं ऐसा, नो 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 अब्बास इज राइट, तो डू इट अब्बास भाई इस वे। तो अब मैंने वो शाहरुख समझ गया कि नहीं यार मंसूर भाई भी यही चाह रहे हैं। ऐसा लगता था कि ये कुछ छलांग मारने के लिए आया है इंडस्ट्री में, जो आज आप देख सकते हैं उनकी मेहनत। और बिकॉज़ उस टाइम पे तो आप एक्शन और शाहरुख को एसोसिएट नहीं करते थे। मतलब आपको लगता है कि भाई मैं सही हूं या एक हद तक मैं डिस्कस कर सकता हूं, तो मेरी आदत है कि मैं कर देता हूं, कि भले वो कोई भी हो, सुपरस्टार हो, ये हो, भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखना पड़ेगा ना, कि भाई नहीं ये हम ऐसा सोच रहे हैं। बाकी तो आप बोलेंगे भाई, और 2 बार समझाओ, तीसरे बार हम खुद मतलब समझ जाओ कि सामने वाला नहीं समझेगा। समझना नहीं है। हाँ। मेरी फिल्म सारे हीरोइन ओरिएंटेड होते थे जी। दुश्मन में, इवन दो वी हैड संजू, फाइनली काजोल, शी वाज द वन हु हैड टू किल द विलेन। मैम देखिए ना, मतलब दुश्मन में एक पोस्टमैन से लोग डरने लगे थे। हाँ, बहुत डरने लगे थे। व्हाट्सएप का एक नरेशन था कि भाई इसको इतना मतलब दिखाना है विलेनिश, ये कि लोग इससे डरें। और कहानी आपकी बोलती थी कि काजोल ही मारेगी, बिकॉज एक का ये रेप हुआ ही है और आपने ले लिया है संजू को। तो अब फाइट मास्टर के ऊपर चैलेंज है कि भाई संजू अगर फाइट में है तो करेगा क्या। बिल्कुल। तो संजू केम, ही स्टार्टेड फाइटिंग विद आशुतोष राणा, और आशुतोष राणा की तो मतलब उस टाइम पे ऐसी घबराहट हो रही थी कि बोले, मेरे को साइड में बोले मास्टर जी मैं इसके साथ लड़ूंगा कैसे। मैं बोला यार तो भूल जा, कैमरा ऑन होगा तो कि तू मतलब विलन है और वो हीरो है, तू लड़ बिंदास, हम लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे। एंड फाइनली ही स्टेप्स संजू गिर जाता है। फिर एक हमको हीरोइक पॉइंट लाना था कि जहाँ उसने गन उठा लिया, काजोल को मारने वाला है, एंड संजू कम्स लास्ट मिनट, ही होल्ड्स द गन और उसके हाथ में से फायर हुआ, एंड शी टेक्स द गन एंड शी फायर्स। बिल्कुल। और एक बहुत ही इमोशनल शॉट था कि गन फोरग्राउंड में है और वो काजोल का फोटो फ्रेम है, सिस्टर्स फोटो। हाँ, और वो खून उसमें, इतना टची शॉट है वो कि बट उस जमाने में मुझे याद है कि डबल्स जो होते थे हमारे लिए, लाइक इवन दिल है के मानतानी में, व्हेन आई हैड टू जंप ऑफ द शिप, द डबल वाज अ मेल। वो विग पहनाते थे बेचारे फाइटर को और वो कॉस्ट्यूम दे देते थे, एंड दे वुड मेक देम डू व्हाटएवर। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट गर्ल्स। तमन्ना में जब आपका एक फायर लगाते हैं, हाँ, और वो केले के पत्ते बांध के आप लोगों ने, और उस दिन मैं इतना डर गया था कि भट्ट साहब ने कहा कि देखो पूजा को फायर लगाना है और आप जरा ध्यान रखना कि वो मेरी बेटी है, और भट्ट साहब बोल के चले गए। और मैं भट्ट साहब को देख रहा हूँ कि फायर भी लगाना है और मेरी बेटी भी है, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं। अब्बास क्या होगा आज यार। फिर जो आपने जो शॉट दिया है मैम, हेड्स ऑफ। नहीं मगर आप लोग ने मुझे प्रेप किया था, मुझे याद है वहां पे एक जिगर चाहिए वो फायर को भी लगाना। केले के पत्ते जी, और उसके ऊपर फिर वो रबर सोल्यूशन। आई स्टिल रिमेम्बर द हीट फ्रॉम दैट। मेरा चेहरा जो है पूरा लाल हो गया, बट नथिंग हैपेंड टू मी। जब ये आप है तो काय का डर। बट हाउ वुड यू सम इट अप अब्बास भाई, मतलब इतने साल हो गए हैं, और जैसे एक डायलॉग था दिल है के मानतानी में, तब भी भाग रहे थे अब भी भाग रहे हैं, ये बंद ही नहीं होता है, भागते जा रहे हैं। तो आपके अंदर भी क्या ये फीलिंग है? इज देयर एनी सेंस ऑफ अ कंप्लीशन इन दिस जर्नी? एक ऊपर वाले से ये है कि उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि भाई जब तक जिंदगी है फिल्म लाइन में ही काम करते रहूं और ऐसे ही हंसते खेलते ऊपर वाले के पास चले जाए। लेकिन जब तक है आई वुड विश कि मैं काम करते रहूं, क्योंकि मैं इतना ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला है कि जहां मैं सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करता हूं। मैं हर जगह भट्ट साहब का नाम ले लेके ये करता हूं कि हम लोग को सीखने मिला है, ऐसा इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं मिल सकता, और हम लोग खुश नसीब है
कि मतलब उनकी जो स्टोरी टेलिंग है, जब आप उनको सुनते हैं तो आपको एक दिल भर आता है। जैसे भट्ट साहब का एक इंटरव्यू था, मैंने भट्ट साहब को मैसेज किया कि उसमें सच्चाई थी, जो कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि वैसे ही फॉलो करें। हेड्स ऑफ टू बिग डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, स्पेशली टू भट्ट साहब। नहीं, मगर यू आर वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल आई मेट। आप बट आपने कभी भी फॉल्स तरीके में वाह किसी की की नहीं, एंड आई एम प्रूफ ऑफ दैट। बट यू आर सो वाइज, एंड आप जब ये सेट पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि बस अभी अब्बास भाई है ना, वो देख लेंगे। तो यू आर समबडी हु इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस एंड गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ आई एम इन चार्ज। जो लोग अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो एक्शन सीक्वेंसेस देख के उनको लगता है कि हमें भी एक्शन मास्टर बनना है, या व्हाट इज द एडवाइस यू वुड गिव देम? एक्शन मास्टर बनने के लिए पहले आपको अच्छा एक स्टंटमैन बनना बहुत जरूरी है। जो रूल है जी, जो बेस है उसका, कि भाई आपको 8 साल स्टंटमैन पहले बनने पड़ेंगे, फिर 2 साल एज एन असिस्टेंट किसी को करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप में अगर ताकत है तो आप मतलब मास्टर बनने की कोशिश करते हैं। जो आप में एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं मास्टर बन के मैं सस्टेन करूंगा इंडस्ट्री में, क्योंकि आपका काम लोग देखते हैं। जैसे मेरी पहली मदोश पिक्चर थी तो बहुत से फाइट मास्टरों ने जाके थिएटर में देखा कि यार इसका कुछ गलती तो निकाले अब्बास की। क्योंकि विक्रम जी ने मुझे मैड मैक्स का क्लाइमैक्स दे दिया था पहली पिक्चर में। वो लोगों ने जाके देखा कि कोई गलती ही नहीं है यार इसमें, तो अब्बास ने बहुत अच्छा काम किया है, हनीफ अब्बास ने बहुत अच्छा काम किया है यार। लोगों ने काम को सराहाया मेरे। तो ऐसा करते 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 फिर मुझे आमिर की बाजी मिली, आमिर को अच्छा लगा काम। ऐसा करते करते ऊपर वाले ने मौका दे दिया है अभी। बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अब्बास भाई कि जब आप अपने अब्बा के बारे में सोचते हैं तो उनकी क्या बात आपके दिल में, आपके जहन में बार बार आती है? वो आदमी को हम देखते थे, मतलब मेरा 64 बॉर्न है, तो उससे पहले 1940s में 38-40s में उनकी पहली पिक्चरें थी वो। तो वहां से लेके वो दौर चला, जब हम लोग होश में आए, हम लोग ने देखना, सिनेमा को समझा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि थिएटर में मैं देख रहा हूँ कि डैडी को मार रहे हैं, तो मैं थिएटर में सीट पे खड़ा होता था, मेरे बाप को क्यों मार रहा है? तो बाजू वाले पकड़ के बिठा देते थे, अरे वो पिक्चर है यार। तो ऐसा लगता था कि क्यों मेरे बाप के साथ ऐसा हो रहा है यार। तो उनकी यादें हैं, स्पेशली वो उनका जो डाउनफॉल है वो मैंने देखा कि मेरी बड़ी सिस्टर को हमने काफी मेहनत के साथ शादी करके, काफी दहेज के साथ ये किया था, और वो शादी सक्सेस नहीं हुई। तो वहां से वो एकदम ही गिर गए, मतलब एक पहाड़ जैसा इंसान वो रेत बन गया, वो वैसा वाला। तो वो जब याद आता है तो वो चीजें तकलीफें देती है। बाकी तो देर सवेर मतलब चलते रहता है ये, और कोई चीज में ना नहीं है। जो हर बाप अपने बच्चों को सोचता है कि यार मैं ये करूं। काफी धोखा मिला है उनको जिंदगी में, तो लोग अच्छे नहीं मिले उनको। बाकी तो चलो ठीक है। What was very moving कि जब ये आपने कहा काश वो आज आपकी तरक्की को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। I'm sure he's watching you, और he would have been very proud because look at you. So may your voice resonate forever, because मुझे आपसे बहुत कुछ मिला है। इंशाल्लाह मैं अपनी खुद की फिल्म शुरू करूंगी, और वो बन ही नहीं सकती अगर अब्बास भाई उसमें नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। So thank you very much. Same here. And I look forward to seeing more of your work, and अरबाज को मैं देखना चाहती हूँ जहाँ पे आप पहुंचे हैं। तो thank you so much. Same here, man. Thank you. The Pooja Bhatt Show is produced by Mammoth Media Asia and Epilogue Entertainment, and distributed by iHeart Podcasts. The executive producer is Jonathan Strickland.